جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا مگر انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا تو ایک روز دن کے وقت مجھے کمرے سے باہر نکال کر ایک جیپ میں بٹھا دیا گیا۔ میرے دونوں ہاتھوں کو ہتھ کڑی لگا دی گئی تھی۔ نقاہت سے میرا سر اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا تھا، ادھر ادھر ڈولنے لگتا تھا، پھر بھی میں نے اپنی قوت ارادی سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ شاید یہ مجھے کسی دوسرے ٹارچر سیل میں لے جا رہے تھے۔ جیپ چاروں طرف سے بند تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہاں سے کہاں گزار کر کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی تک مجھے یہ بھی علم نہیں ہو سکا کہ یہ بھارت کا کون سا شہر ہے، کون سے شہر کی چھاؤنی کا فوجی کیمپ ہے۔ میں ویسے بھی ان باتوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے یہ ساری زندگی مجھے ٹارچر کرتے رہے، میں ان کا تشدد برداشت کرتا رہوں گا مگر اپنی زبان نہیں کھولوں گا۔ باہر کی خوشگوار تازہ ہوا نے میرے جسم کو تھوڑا سا سکون دیا تھا۔ میں نے ایک دو بار آنکھیں کھول کر جیپ کی ترپال میں بنے ہوئے چوکور روشن دان کی طرف دیکھا۔ درخت ہی درخت پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سر ترپال کی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ فوجی جیپ کافی دیر تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ رک گئی۔ جیپ کا پچھلا دروازہ کھلا، وہاں پہلے سے دو مسلح فوجی کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ میں نے نیلی وردی والے ایک آدمی کو بھی دیکھا۔ اس کی وردی سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور انڈین ایئر فورس کا آدمی ہے۔ مجھے کھینچ کر جیپ سے باہر نکالا گیا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کے پاس کھڑا ہوں۔ دور کچھ فاصلے پر انڈین ایئر فورس کا ایک طیارہ کھڑا تھا۔ سفید اور نیلے رنگ کی ایک دوسری جیپ تیزی سے آ کر ہمارے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کو ایئر فورس کا ایک آدمی چلا رہا تھا۔ میرے ساتھ 3 انڈین آرمی کے مسلح فوجی تھے۔ انہوں نے مجھے دوسری جیپ میں دھکیلا اور میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ جب جیپ اس طیارے کی طرف چل پڑی جو دور رن وے پر کھڑا تھا، میں سمجھ گیا کہ مجھے یہاں سے کسی دوسرے شہر انڈین ایئر فورس کے کسی ٹارچر سینٹر پر لے جایا جا رہا ہے۔ اب میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں فرار ہونے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے موت کا خطرہ ہی کیوں نہ مول لینا پڑے، کیونکہ میں نے ٹارچر کے سلسلے کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا تھا۔ اگر مجھے مرنا ہی تھا تو میں دشمن کی اذیتیں برداشت کرتے رہنے کی بجائے فرار کی کوشش کرتے ہوئے مرنا چاہتا تھا۔ ویسے مجھے یقین تھا کہ اگر مجھے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو میں فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے ایک فوجی سے کہا، یہ کون سا شہر ہے؟ اس نے مجھے گالی دے کر کہا، اب پوچھ کر کیا کر لے گا کہ یہ کون سا شہر ہے، خاموش بیٹھا رہے۔ میں نے اس کے فکرے کی حقیقت کو اس وقت سمجھنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ یہ حقیقت مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی۔ جیپ فوجی طیارے کے پاس جا کر رک گئی۔ کھلی جیپ تھی، طیارہ دن کی روشنی اور دھوپ میں صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک پنکھے والا ایئر فورس کا چھوٹا طیارہ تھا جس کی 3 کھڑکیاں تھیں، سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ مجھے آرمی کے تینوں فوجیوں نے پکڑ کر چلاتے ہوئے طیارے کے اندر لا کر ایک سیٹ پر بٹھا دیا۔ وہاں پہلے سے ایئر فورس کی وردی میں ملبوس 2 آدمی کھڑے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دکھائی دیے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اس کے بعد نہ تم ہمیں دیکھ سکو گے نہ ہم تمہیں دیکھ سکیں گے۔ میں نے ان تاثرات کو جذبہ رحم سمجھا اور سر جھکا کر طیارے کی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ سیڑھی ہٹا دی گئی، طیارے کا انجن سٹارٹ ہوا، طیارہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ پھر رن وے پر اپنے خاص مقام پر آ کر طیارے کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس کے بعد وہ فضا میں بلند ہو گیا۔ طیارے نے ایک چھوٹا سا چکر کاٹا اور پھر آہستہ آہستہ بلندی پر جا کر ایک طرف پرواز کرنے لگا۔ مجھے ایسی جگہوں پر بٹھایا گیا تھا جہاں سے میں باہر اور نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ طیارے کو سیدھا پرواز کرتے 10-15 منٹ گزرے ہوں گے کہ آرمی کے 2 فوجی میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری ہتھکڑی طیارے میں سوار کرتے وقت کھول دی گئی تھی۔ میں بالکل نہ سمجھ سکا کہ وہ اچانک کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے جہاز کے دروازے کے پاس لے آئے جہاں سیڑھی لگا کر مجھے جہاز میں سوار کیا گیا تھا۔ وہاں طیارے کے عملے کا ایک آدمی پہلے سے جیسے تیار کھڑا تھا۔ دہشت اور خوف سے میرا جسم ایک دم سرد پڑ گیا۔ میری چھٹی حص نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی فوجی مجھے دروازے کے پاس لائے، وہاں جو ایئر فورس کا آدمی کھڑا تھا اس نے ہک نیچے کر کے دروازہ اوپر کو اٹھایا۔ ہوا کا زبردست تھپیڑا مجھے لگا اور میں وہیں فرش پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دونوں فوجیوں نے فوراً مجھے پیچھے سے دھکیلا اور میں طیارے کے دروازے سے باہر گر گیا۔ میں نے دونوں ہاتھ گرنے سے پہلے اس طرح پھیلا دیے تھے جیسے ڈوبنے سے پہلے آدمی تنکے کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا ہاتھ بائیں جانب دروازے کے ساتھ جو سیٹ تھی اس پر پڑ گیا۔ اس سیٹ کے پیچھے چمڑے کی بیلٹ لٹک رہی تھی۔ اوپر سے فوجیوں نے میرے بازو پر زور سے ٹھڈے مارے تو سیٹ پر سے میرا ہاتھ چھوٹ کر چمڑے کی بیلٹ پر آیا تو میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب میں طیارے کے باہر چمڑے کی بیلٹ کے ساتھ نیچے لٹکا ہوا تھا۔ ہوا کے شدید تھپیڑے مجھے ادھر سے ادھر جھلا رہے تھے۔ میں نے بیلٹ کو اب دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، طیارہ چھوٹا تھا، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ہوا کے دباؤ سے ڈولنے لگا۔ مجھے اوپر سے کسی کے انگریزی میں چلانے کی آواز آئی، اسے شوٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ ہی جہاز نیچے کو غوطہ لگا گیا۔ اس سے جہاز کی بلندی کم ہونا شروع ہو گئی۔ خدا جانے کہاں سے طاقت آ گئی تھی۔
मैंने चमड़े की बेल्ट को मजबूती से पकड़ रखा था। ऊपर से स्टेन गन का ब्रस्ट फायर हुआ तो मैंने बेल्ट को हाथों से छोड़ दिया। बेल्ट को छोड़ते ही फजा में कलाबाजियां खाता नीचे गिरने लगा। हवा मेरे जिस्म को, मेरे कानों और चेहरे को जैसे छीलती हुई नीचे से ऊपर को जा रही थी। मैंने फौरन अपनी दोनों टांगे और बाजू खोल कर फैला दिए। इससे इतना हुआ कि मैं पत्थर की तरह नीचे गिरने की बजाय हवा में ग्लाइड करने लगा, लेकिन जमीन तेजी से ऊपर आ रही थी। दरख्त मुझे चकनाचूर करने के लिए मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। अचानक एक तरफ से तेज हवा का जबरदस्त थपेड़ा मुझे लगा और मैं बाएं जानिब को सूखी शाख की तरह फजा में उड़ता हुआ दूर तक चला गया। उसके बाद फिर नीचे गिरने लगा। मैंने दिल में कलमा पढ़ा, खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगी और अपनी जान उसके सुपुर्द करने को तैयार हो गया। मेरी मौत यकीनी थी। तब मुझे अपने इर्द गिर्द पानी का दबाव महसूस हुआ और उसके साथ ही मुझे एक और धचका लगा और मेरा जिस्म गिरते गिरते किसी जगह लगकर रुक गया। अब मुझे ये समझने में देर न लगी कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ और तैयारे से गिर जाने और चमड़े की बेल्ट को छोड़ने के बाद किसी दरख्त या पहाड़ी चट्टान पर नहीं बल्कि किसी तालाब या झील या दरिया में गिरा हूँ। फौजी, मैंने तेजी से अपने आप को पानी की तह के कीचड़ से ऊपर को उठाया। पानी की तह में कीचड़ की मोटी तह थी जिसके अंदर मैं आधे से ज्यादा धंस गया था। मैंने अपने आप को ऊपर उठाना शुरू कर दिया था। उस वक्त मेरा जिस्म जरा भी दर्द नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं पानी की सतह से बाहर निकल आया और तैरने लगा। मैंने देखा कि ये एक बहुत बड़ी झील थी। अगर मैं किसी तालाब में गिरता तो जिंदा न बचाए। तैरता तैरता मैं किनारे के सरकंडों में से निकलकर किनारे पर आ गया। अब मुझे शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं वहीं किनारे पर लेटी। मैं दोबारा उठकर बैठ गया। मैंने जूते उतार दिए। मेरी जैकेट टॉर्चर चैम्बर में ही उतार ली गई थी। मैंने पतलून को उतार कर थोड़ा सा निचोड़ा और उसे फिर पहनकर उसी जगह बैठा। मुझे ये अंदेशा था कि भारतीय फौजी मेरी तलाश में वहां आ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी तरफ से मुझे तैयारे से नीचे फेंक कर हलाक कर चुके थे। वो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतनी बुलंदियों से नीचे पहाड़ियों में गिर जाने के बाद जिंदा बच जाऊंगा। मैंने सोचा कि उठकर चला जाए और मालूम करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। मैं जंगल में दरख्तों के दरमियान थोड़ी दूर तक चला हूँगा कि मुझे पत्तों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। साथ ही किसी ने बड़े रोब से देहाती जबान में कहा, कौन हो? मैं वहीं रुक गया। वस्ती हिंद के जंगल और यहाँ के जंगली और देहाती लोग मेरे लिए अजनबी नहीं थे। इन जंगलों की मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद भी कमांडो कार्रवाइयों के सिलसिले में काफी खाक छानी थी। मैंने बोलने वाले की आवाज और उसके रोबदार लहजे से अंदाजा लगाया कि ये कोई सीधा साधा देहाती नहीं है, कोई और ही मामला है। इतने में 3 आदमी दरख्तों के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गए। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछते कि मैं कौन हूँ, मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये लोग कौन हैं। ये हुलिये भोपत डाकू के साथियों से मिलते जुलते थे। वो मेरे करीब होकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, अरे लखो, ये किसी ठाकुर का बेटा लगता है जिसके पीछे इसके दुश्मन लगे हैं। दूसरे ने कहा, तुम कैसे कह रहे हो? पहले ने कहा, तो फिर किसी को इसे मारने की क्या जरूरत है भला? अरे लखो, लड़का जवान है, खुश शक्ल है, जरूर इसको जायदाद की खातिर, दौलत की खातिर इसके ताए चाचा मारना चाहते होंगे। तीसरा बोला, तो फिर हमें इस बकबक से क्या लेना है भैया, इसको यहाँ छोड़ दो और डेरे पर चलो, कहीं इसके पीछे पुलिस ही न लगी हो, खामखा हम भी फंस जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया था कि ये लोग कौन हैं। इतना मैं जरूर चाहता था कि इस किस्म के जराइम पेशा लोग अगर किसी के दोस्त बन जाएं तो फिर बड़े वफादार और जाननिसार दोस्त साबित होते हैं। मेरी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं एक ऐसे जंगल में गैर मालूम मुद्दत तक चला जाऊं। मुझे आराम और थोड़ी बहुत खुराक की जरूरत थी ताकि अपनी ताकत बहाल करने के बाद वापस अपने कमांडो मुजाहिद साथियों के पास कश्मीर जाऊं। मैं ये भी नहीं जानता था कि जब तक इन लोगों को मुझसे कोई लालच नहीं होगा, ये कभी उठाकर मुझे अपने डेरे पर नहीं ले जाएंगे और इनके डेरे पर जाकर ही मुझे खुराक के अलावा कुछ देर के लिए आराम मिल सकता है। मैं अगर इनसे किसी तरह पीछा छुड़ाकर किसी करीबी कस्बे या शहर की तरफ भी निकल जाता तो वहाँ अव्वल तो मुझे कोई कुछ दिनों के लिए अपने पास नहीं रख सकता था। इसके अलावा मुझे मशकूक समझकर कोई शख्स पुलिस को मुखबरी भी कर सकता था। चुनाचे मैंने अपने जहन में पूरी स्कीम तैयार करके कराहना शुरू कर दिया। जैसे होश में आ रहा हूँ, मैं बड़बड़ाने लगा, जग्गू चाचा मुझे न मारो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मुझे न मारो, मैं सारी दौलत तुम्हें दे दूंगा। मैंने थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रखी थी। दौलत का सुनकर मैंने देखा कि तीनों के कान खड़े हो गए हैं। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने, जिसका नाम लखू था, मुझसे कहा कि होश करो भैया, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, हम तुम्हारे पास हैं, हमें बताओ कि क्या हुआ है। मैंने आंखें खोल दी और कराहते हुए कहा, मुझे उठाकर बिठा दो। उन्होंने मुझे उठाकर बिठा दिया। वो खुद भी चौकड़ियां मारकर मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। मैंने कहा, भाई मेरा नाम धर्मवीर है, यहाँ से कुछ फासले पर जो बड़ा कस्बा है वो। अब मुझे क्या मालूम था कि वहाँ करीब बड़ा कस्बा कौन सा है। इतना जरूर जानता था कि वहाँ करीब या दूर कोई न कोई बड़ा कस्बा जरूर होगा। मैंने अपने ऊपर नकाहत तारी कर ली। उनमें से एक ने बोला, बोलो बोलो, कौन सा कस्बा? क्या तुम इमराली कस्बे की बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ हाँ,
इमराली के ठाकुर दीवान वीर सिंह का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं। पिताजी की सारी जायदाद का मैं इकलौता मालिक हूँ। इसके अलावा मेरे पिताजी ने सोने चांदी की 200 डलियां और कुछ हीरे जवाहरात एक हांडी में बंद करके हवेली के अंदर मेरे सामने एक खुफिया जगह पर जमीन में दबा दिए थे और कहा था, जब तुमको जिंदगी में कभी कारोबार में घाटा पड़ जाए और दौलत की जरूरत पड़े तो ये हांडी यहाँ से निकाल कर इसकी दौलत से कोई नया कारोबार शुरू कर लेना। मेरे चाचा जगत सिंह को किसी तरह मालूम हो गया कि हवेली में किसी जगह सोने की डलियों और जवाहरात वाली हांडी मेरे पिताजी ने दफन कर रखी है और इसका राज सिर्फ मुझे ही मालूम है। उसने मुझसे पहले तो प्यार मोहब्बत से ये राज हासिल करने की कोशिश की। जब मैंने बताने से साफ इनकार कर दिया तो कल रात को वो मुझे अपने गुंडों की मदद से बांध कर जंगल में ले गया और मुझे इस कदर मारा कि मैं नींद बेहोश हो गया। उसके बाद इन गुंडों ने मुझे झील में फेंक दिया और चले गए। मेरी किस्मत अच्छी थी कि झील में गिरते ही मुझे होश आ गया। मैं किसी न किसी तरह झील से निकलने में कामयाब हो गया, मगर मार खाने की वजह से मेरा सारा बदन दुख रहा है। मैं बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। दिन के वक्त होश आया। अब वहाँ से दरख्त की शाख पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि किसी तरह थाने पहुंचकर चचा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊं। तीनों जराइम पेशा आदमियों को जो यकीनन छोटे मोटे चोर डाकू लग रहे थे, मेरी कहानी सुनकर बातें खिल गईं। मेरी स्कीम कामयाब साबित हुई थी। कहने लगे, अरे भैया जी, तुम्हें पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं। पुलिस तो तुम्हारा सारा माल हड़प जाएगी और तुम्हारे चचा को भी नहीं पकड़ेगी। हम तुम्हें तुम्हारा सारा माल दिलवाएंगे। हम तुम्हारे जालिम चचा से तुम्हारा बदला लेंगे। चलो हमारे साथ डेरे पर चलो, हम तुम्हारी दवा दारू का बंदोबस्त करते हैं। बस अब तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा था। इन्होंने मुझे इस कदर एहतियात के साथ जमीन पर से सहारा देकर उठाया जैसे मैं कोई इंतहाई नाजुक और कीमती चीज हूँ। लक्खू बोला, अरे बाबू साहब को कंधे पर बिठा लो रामू। दूसरे आदमी जिसका नाम रामू था, मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भैया, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ। रामू ने मुझे बाजू से थाम लिया और मैं लाठी के सहारे उनके साथ जंगल में चल पड़ा। आदमियों ने भी मेरी तरफ गौर से देखा। लक्खू और रामू ने उन्हें भी यही कहा कि ये अपने बाबू साहब हैं, ठाकुर दीवान वीर के पुत्र हैं, हमारे यहाँ कुछ रोज मेहमान रहेंगे। थोड़ी देर बाद मेरे लिए चाय का गिलास आ गया। मैं खामोशी से चाय पीने लगा। चाय ने मेरे जिस्म में एक चुस्ती सी पैदा कर दी। टांग में थोड़ा थोड़ा दर्द जरूर हो रहा था। रामू बोला, अरे बाबूजी, तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे हैं, ये उतार कर दूसरे पहन लो, हम इसे सुखाई देते हैं। एक आदमी मेरे लिए धोती कुर्ता ले आया। मैंने पतलून कमीज उतार कर धोती कुर्ता पहन लिया। लक्खू ने अपने एक आदमी से कहा, चल बे, नदी पे जाकर इनको धोकर आ और सुखाने के लिए डाल दे। मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशान सिवाय मेरे पेट पर की गई नश्तर जनी के जख्म के और कहीं भी निशान नहीं था, लेकिन एक आंख एक तरफ से सूजी हुई थी। चोटें ज्यादातर जिस्म के अंदर लगी थी। तैयारे से गिरने की वजह से बाएं टांग में भी दर्द की टीसें पड़ रही थी। लक्खू कोई खास किस्म का तेल ले आया। कहने लगा, इसकी मालिश से दर्द खत्म हो जाएगा। वो मेरी टांग और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर तेल की मालिश करने लगा। इस आवभगत की वजह हीरे जवाहरात और सोने की डलियों वाली वो फर्जी हांडी थी जो इमराली कस्बे की मेरी आबाई हवेली में किसी जगह दफन थी और जिसका सिवाय मेरे और किसी को इल्म न था। ये लोग मुझसे वो जगह मालूम करना चाहते थे जहाँ वो खजाना दफन था। लक्खू मेरी टांग पर मालिश करते हुए बोला, ठाकुर बाबू, इमराली का कस्बा तो यहाँ से बहुत दूर ग्वालियर के पास है। तुम्हारा चचा तुम्हें कत्ल करने के लिए इतनी दूर क्यों ले आया था? क्या रास्ते में कोई जगह नहीं मिली थी? पहली बार मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं हिंदुस्तान की वस्ती रियासत ग्वालियर के आसपास हूँ। यकीनन जिस टॉर्चर सेल में मुझे अजियत का निशाना बनाया गया था वो ग्वालियर की फौजी छावनी में ही थी। मैंने कहा, चचा जग्गू चाहता होगा कि किसी दूर दराज इलाके में ले जाकर मुझे ठिकाने लगाए ताकि पुलिस को उस पर शक न पड़े। 3 दिन गुजर गए। इन लोगों ने मेरी खूब खबरगिरी की, अच्छा खिलाते पिलाते रहे और दवा दारू भी करते रहे। एक डाकू की ड्यूटी लगा दी गई थी कि रोजाना सुबह शाम मेरी टांग की मालिश करे। मेरी आंख की सूजन बहुत कम हो गई थी, मगर बाईं टांग पर अब भी दबाव डालता तो दर्द उठता। मैं यहाँ कुछ रोज मजीद कयाम करके मुकम्मल सेहतयाब होकर कश्मीर वापस जाना चाहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।